Yes. So it is page number. mm, It is page number 49. ओके, बुक नहीं है, ठीक है. एनीवे, एंड इट इज जो कल हमारी क्लास थी उसमें हमने यहाँ तक पढ़ा that Herbert was saying that if I take if I will take this alcohol, then I won't be able to work work with full concentration at my workplace. And flywheel might gobble me up, means that this machine that can take him fully, and then he will be dead. And then Mrs. White, which is who is his mother, says, "Don't, Herbert. No, Herbert, don't talk about such things." And then she sits in the armchair below the fire, near the fireplace. She sits there in the armchair, and Herbert laughing, हंसता है, and he says, "No fear, mother. No fear." Means कोई डर नहीं है. Do not. There is nothing to be afraid of. I will take care, mother. And then Sergeant says, "Ah, you electrician, sort of magicians you are. Light says you, and light it is, and power says you, and the trams go whizzing, and knowledge says you, and words go humming to the ends of the world. It fair beats me, and I've seen a bit in my time too." So here he is uh, saying this to Herbert, that Herbert, you are uh, working as an electrician, and you electricians are kind of, sort of, means kind of magicians. And when you say light, there is this light and power, and then the trams go whizzing. Trams is जो बस होती है, ठीक है, which runs over electricity. इस तरह की ट्रेन, हम कहेंगे ट्रेन. That go whizzing means that go with full speed. And knowledge saves you, and you say knowledge, and words go humming to the ends of the world. Knowledge here is referring to printing, printing of the books, and that's what he's calling knowledge. That you say knowledge, and these printing machines, they start printing the words to the ends of the world, means that which can go anywhere in the world. It fair beats me, and it beats me means it impresses me. I am impressed by this, and I have seen a bit in my time too, and I've seen all of these things in my time. And Herbert nudges his father, इशारा करता है अपने पिता की तरफ, कहता है, and then he says, "Your Indian magic, all a fake, governor, the fakir's fake." So he is saying this to Sergeant Major Morris, that your Indian magic details you tell us, they all are lie. All of them are lie. The fakir is fake. And Sergeant says, "Fake you call it. I tell you, I've seen it." So don't call that fakir fake. I have seen that with my own eyes. And at this Herbert, nudging his father with his foot, इशारा करता है अपने फादर को, and he says, "Oh, come now,
such as what? Come now means tell us. What have you seen? Tell us. And Sergeant says, I have seen a cow with no more clothes on than a baby. And then he looks at, yes, Abhishek? ओके, एक बार फिर से इसको टेस्ट करता हूँ. I have seen a cow with no more clothes. अभी ठीक है थोड़ा अभिषेक? अच्छा, एक सेकंड. अब ठीक है. हाँ, वो फैन चल रहा था. ठीक है. सो nudging his father with his foot, अपने पैर से इशारा करता है. Oh, come now, such as what? Come now. So he is saying that tell us what you have seen. And Sergeant says, I've seen a cow with no more clothes on than a baby. Cow is a man. I saw a man with no more clothes, without clothes on his body. And then a baby means जैसे कोई छोटा बच्चा है, बहुत कम कपड़े पहनता है, उस तरीके से. This man, he was wearing very few clothes. And then to Mrs. White, now he is looking at Mrs. White and says, if you know what I mean, take an empty basket, empty mind, as empty as this here glass. So says that he take an empty basket. He took this empty basket, empty mind. Empty mind here means he is reminding that खाली, हाँ ध्यान रखना, as empty as this here glass. इतनी खाली जितना कि ये glass है. Glasses which was in which Sergeant was offered this wine. And Mr. White says, hand it over, Morris. Means, give this empty glass to me, Morris. And he hands it to Herbert. लेता है और Herbert को वो गिलास देता है, पकड़ाता है, who goes quickly behind the table and fills it. और जो टेबल के पीछे जाता है और फिर से इस ग्लास को भर कर लाता है, शराब इसमें भर के लाता है. एंड एट दिस ये जब गिलास भर रहा होता है, Harvard, then Sergeant says, which was not my intention but used for illustration. So he is pretending, he is pretending that no, I did not want any more wine. I was just giving an example of this empty glass. Not my intention. मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं और शराब चाहता हूँ. Then Herbert says, while mixing, when he is mixing this, mixing water in that wine, alcohol. Oh, I have seen the basket trick, and I have read how it was done. हाँ, मैंने देखा है इस ट्रिक को, बास्केट की जो ट्रिक है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो. एंड आई हैव रेड, और मैंने पढ़ा है इसके बारे में कि ये कैसे की जाती है. Why I could do it myself with a bit of practice. So well, I can do that. मैं भी ऐसा कर सकता हूँ with a bit of practice, with a little practice. Ladle out something stronger. Ladle means bring out. Ladle, ladle out, bring out something stronger. कुछ तगड़ा, कुछ ऐसी बात या ऐसी कोई कहानी हमें सुनाओ जिसमें कोई वजन हो, जिसको हम मान सकें. And Herbert brings in the glass. So अब उसने उसको भर लिया है ग्लास को. And he brings that. And Sergeant says, he asks,
stronger? What do you say to an old fakir? Chucking a rope up in the air, mind you, and swarming up it, same as if it was hooked on and vanishing clean out of sight. I've seen that. So now he is coming up with something stronger, means something which can amuse, हैरान कर दे जो ऐसी चीज. तो कहता है व्हाट डू यू से टू एन ओल्ड फकीर, उस ओल्ड फकीर बूढ़े फकीर के बारे में तुम क्या कहोगे. चकिंग अप अ रोप अप इन द एयर, जो कि एक रस्सी पर चढ़ जाता है, जो रस्सी टंगी हुई है हवा में. कहता है इन द एयर माइंड यू, हवा में आई एम सेइंग, एंड स्वामिंग अप इट, और इस रस्सी पर वो चढ़ जाता है, सेम एज इफ इट वाज हुक्ड ऑन, जैसे कि ये हुक्ड ऑन मीन्स अटकी हुई है या फिर टांगी गई है किसी हुक में, एंड वैनिशिंग क्लीन आउट ऑफ साइट, और देखते ही देखते गायब हो जाता है. आई हैव सीन दैट, मैं ऐसा देख चुका हूँ. Herbert goes to the table, plunges a knife into a bun, and offers it to the sergeant with exaggerated politeness. Exaggerated means बहुत बढ़ा चढ़ाकर. Politeness is विनम्रता. विनम्रता के साथ, बहुत एक दिखावे की विनम्रता के साथ क्या करता है, हर्बर्ट खड़ा होता है ये कहानी सुनने के बाद इस फकीर की, और goes to the टेबल तक जाता है, एंड प्लंजेस अ नाइफ, और एक चाकू मारता है एक बन में. बन इज ब्रेड में चाकू मारता है और इसे काटता है. एंड देन ही गिव्स इट टू सार्जेंट with politeness, and sergeant eyeing it with disgust. He is looking at this bun, at this bread with disgust, with hatred, and he asks bun, what for? Why are you offering me this? And Herbert says that yarn takes it. So that yarn means that story which you just told us about that fakir. It is for that. It is a prize uh, for you. And Mr. and Mrs. White, delighted. Both of them, they are happy, smiling, we can say. And Sergeant says, mean to say you doubt my word? So he asks that, do you, by offering this bun or bread to me, are you expressing that you are doubting me? You are making fun of me? And then Mrs. White says, no, he is only taking you off. You shouldn't, Herbert. Only taking you off means he is just trying you. He is trying to discomfort you, distress you, परेशान करने की, वैसे ही ये तो मजाक कर रहा है. And he says, you shouldn't, Herbert. You should not do this. And Mr. White says, Herbert always was one for a bit of fun. Herbert हमेशा से ही इस तरह के मजाक करता रहता है. And Herbert puts the bun back on the table, comes round in front, and moving the chair out of the way, sits cross-legged on the floor at his father's side. तो क्या करता है इसके बाद, हर्बर्ट वापस से इस ब्रेड को टेबल पर रख कर आता है, comes round in front, आगे की तरफ आता है, and moving the chair out of the way, और जो चेयर है उसे रास्ते से हटाता है, and फर्श पर बैठ जाता है beside his father. And Sergeant says, but it's true, but what I am telling is true. Why, if I chose, I could tell you things, but there, you don't get no more yarns out of me. So he says, well, if I chose, अगर मैं चाहता तो I could tell you things. मैं बहुत कुछ इस तरह की कहानियां तुम्हें बता सकता था, but there, लेकिन अभी जो तुमने किया, you don't get no more yarns out of me. And for that, I am not going to tell you anything, any more these kind of stories. तो जैसे अभी तुमने मेरा मजाक उड़ाया, तोहफे में मुझे ये एक ब्रेड तुम मुझे दे रहे थे. So that is why I am not going to say anything.
And Mr. White says, nonsense, old friend. He puts down his glass. अपना ग्लास नीचे रखता है और कहता है, nonsense means क्या बकवास है, क्या बात करते हो? Old friend, you are not going to get shirty about a bit of fun. Shirty is getting angry. Shirty is getting angry about a bit of fun. Bit is a little. You are not going to be angry because of this little fun. ये जो मजाक उड़ाया छोटा सा, इस पर इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए. He moves his chair near Morris's and then he moves his chair. तो अपनी जो चेयर है, कुर्सी है, उसे मॉरिस की चेयर के पास रखाता है. And then he says, what was that you started telling me the other day about a monkey's paw or something? So now he is uh, reminded of something. कुछ याद आ जाता है मिस्टर वाइट को. And then he says, एक दिन तुम मुझे कुछ बता रहे थे, monkeys paw या फिर इस तरह का कुछ. And he nudges Herbert and winks at Mrs. White. So he इशारे करता है हर्बर्ट की तरफ and winks, और again he blinks at Mrs. White, his wife. And Sergeant gravely means seriously. He says, nothing, kuch nahi, leastways nothing worth hearing. Says, at least nothing worth hearing. Leastways is at least means बंदर का पंजा जिसकी तुम बात कर रहे हो. There is nothing relevant. कुछ सुनने लायक उसमें नहीं है. And Mrs. White says, Mrs. White with astonished curiosity, बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली उत्सुकता के साथ, क्यूरियोसिटी उत्सुकता के साथ कहती है, monkeys paw, एक बंदर का पंजा. And then Mr. White says, you was telling me. So he again says, yes, you were telling me about that. And Sergeant says, nothing, kuch nahi, don't go on about it, don't talk about it. Puts his empty glass to his lips, then stares at it. अपना जो खाली ग्लास है, फिर से खाली है, उसे अपने होठों से लगाता है. Then stares at it, और इसकी तरफ घूरने लगता है. And he says, what? Empty again? फिर से खाली हो गया. There, when I begin thinking of the paw, it makes me that absent-minded. So, means he says empty again, फिर से खाली हो गया. और when I begin thinking, जब मैं सोचने लगता हूँ इस बंदर के पंजे के बारे में, then I am that absent-minded. I cannot be in the present moment. तो मैं वर्तमान से भटक जाता हूँ, हम कह सकते हैं भटक जाता हूँ. और he is saying this because उसे नहीं याद कब उसने ये जो ड्रिंक थी वो पी ली थी, शराब कब पी ली, इस ग्लास को कब खाली किया, उसे कुछ याद नहीं है. That is why he is saying, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है. And the reason is he is thinking about that paw. And then Mr. White rises and fills the glass. फिर से खड़ा होता है और उस ग्लास में फिर से शराब डालता है, भरता है उसे. You said you always carried it on you. So he is again talking about this monkey's paw. That तुमने कहा था कि हमेशा अपने साथ रखते हो उसे. And Sergeant says, so I do, for fear of what might happen. For fear of what might happen. कि क्या हो जाए, क्या हो सकता है, इस डर से कहीं कुछ गलत ना हो जाए, हमेशा इस पंजे को अपने साथ रखता हूँ. Sunk in thought, और ये कह करके he sinks in thought means विचारों में he sinks in thought, डूब जाता है विचारों में. And he's just starting saying something, but then Mr. White says, handing him glass refilled, फिर से ग्लास भर करके ले आया है और कहता है, there, here it is, लो पकड़ो. He sits again in the same chair, फिर से उसी कुर्सी में बैठ जाता है. And Mrs. White says, what's it for?
sit for means again she is talking about that. Oh, that हमेशा इसे अपने साथ रखते हो, क्या डर है, क्या हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है इस पंजे से, है ना, ऐसा क्यों है? Then sergeant says, you wouldn't believe me if I was to tell you. अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो मेरा विश्वास नहीं करोगे तुम. And then Herbert says, I will, every word. So he's again he is becoming he is joking that हाँ मैं विश्वास करूंगा हर एक शब्द का. And sergeant says, magic then, don't you laugh. So again he is warning him that हंसना मत, ये जादू के बारे में है, ये जो पंजा है ये it has some magical powers. And then Herbert says, I am not. Got it on you now? So he is asking, मैं नहीं हंस रहा हूँ, क्या ये पंजा, बंदर का पंजा अभी भी तुम्हारे पास है? Sergeant says, of course, yes. Herbert says, let's see it. चलो देखते हैं, दिखाओ हमें. And seeing the sergeant embarrassed with his glass, Mrs. White rises, takes it from him, places it on the mantelpiece, and remains standing. तो जो सार्जेंट मेजर मोरिस है, हमें पता है कि उसका एक ही हाथ है, उसका एक हाथ जो उसका है वो उसने आर्मी में जब वो था तब खो दिया था. तो नाउ अब उसे क्या करना है, वो पंजा अपनी जेब से निकालना है, तो लेकिन उसका एक ही हाथ है. सो दैट इज व्हाई ही इज एम्बैरेस्ड, परेशान सा हो जाता है. और मिसेस वाइट जो है वो खड़ी होती है और उसके हाथ से ग्लास, जो वाइन का ग्लास है, शराब का ग्लास है, वो लेती है. एंड प्लेसेस इट ऑन द मेंटल पीस, और इसे जो मेंटल पीस है, फायर प्लेस, उसके ऊपर रखती है. एंड रिमेन्ड स्टैंडिंग, और वहां खड़ी रहती है. और इसी बीच सार्जेंट कहता है, ओह इट्स नथिंग टू लुक एट. हंटिंग इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में खोजते हुए, टटोलते हुए कहता है, इट्स नथिंग टू लुक एट, इसमें देखने जैसा कुछ नहीं है. जस्ट एन ऑर्डिनरी लिटिल फॉर ब्राइड टू अ मम्मी, बस एक साधारण सा, छोटा सा, सूखा हुआ एक मम्मी है. एक मम्मी मीन्स एक सड़ा हुआ, एक हम कह सकते हैं एक पार्ट है, डेड पार्ट. इट इज produces it and holds it towards Mrs. White here, और मिसेस वाइट की तरफ उसे बाहर निकाल के उसके सामने करता है. here it is, and Mrs. White, who has leaned forward eagerly to see, जो आगे की तरफ झुकी हुई थी इस पंजे को देखने के लिए, eagerly, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी इसे देखने का, starts back with a little cry of disgust. तो अब एक डिस्गस्ट के साथ, एक वी कैन से एक बुरे भाव के साथ, या हम कहें नफरत के साथ पीछे हट जाती है. कहती है, ओह, लिटिल क्राई ऑफ डिस्गस्ट इज, ओह व्हाट इज इट? एंड हर्बर्ट सेज, गिव अस अ लुक, लेट अस सी इट. एंड मोरिस passes the paw to Mr. White, from whom Herbert takes it. तो मॉरिस इस पंजे को मिस्टर वाइट को देता है और मिस्टर वाइट से हर्बर्ट ले लेता है. एंड ही सेज, व्हाई इट्स ऑल ड्राइड अप, ये सूखा हुआ क्यों है? एंड सर्जन सेज, आई सेड सो, मैंने बताया, ये तो कहा मैंने ऐसा कि ये सूखा हुआ है. एंड देन विंड, सो विंड इज that noise of the fierce wind which is blowing outside, that rough weather, उस हवा की बहुत तेज जो बह रही है उसकी आवाज आती है. एंड मिसेस वाइट विद अ स्लाइट शडर इज कांपना, ट्रेम्बल, कांपती है हल्का सा. एंड देन शी सेज, हार्क एट द विंड, उस हवा को सुनो कितनी तेज बह रही है. एंड देन शी सिट्स अगेन इन हर ओल्ड प्लेस, जो
पहले जहां बैठी थी वहीं बैठ जाती है। एंड मिस्टर वाइट टेकिंग द पॉ फ्रॉम हर्बर्ट, हर्बर्ट से पंजा लेते हुए कहता है, एंड व्हाट माइट देयर बी स्पेशल अबाउट इट, तो इसके बारे में कुछ कुछ है ऐसा जो खास हो, या फिर क्या खासियत है इस पंजे की। एंड सार्जेंट इम्प्रेसिवली मीन्स बड़ा ही वी कैन से एक अलग ही अंदाज में, एक खुश होने के अंदाज में कहता है दैट देयर पॉ हैज हैड अ स्पेल पुट अपॉन इट। व्हाट इज द स्पेशलिटी, दैट दिस पॉ हैज हैड अ स्पेल, इस पर एक 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 जादू किया गया है इस पंजे पर। एंड मिस्टर वाइट सेज नो, he is kind of, he does not believe this, and in great alarm he thrusts the paw back into Morris's hand। तो एकदम से जब उसने कहा इस पर जादू किया गया है तो चौकन्ना हो जाता है, बड़ा ही अलार्म, हक्का बक्का रह जाता है, और फिर से थ्रस्ट इज पुशिंग, पुश करता है, फिर से इसे मोरिस के हैंड में, मोरिस के हाथ में पकड़ा देता है। एंड सार्जेंट सेज, so this is the one of the important dialogues by Sergeant Major Morris, क्योंकि यहाँ हमें पता चलता है कि ये जो मंकी पॉ है ये व्हाट इज द बेस, इसका बेस क्या है, आधार क्या है, ये क्यों है, क्यों आया, ये कहाँ से आया, ठीक है, उसके बारे में हमें इस डायलॉग में पता चलता है। so here Sergeant pensively means in a sad mood, sadly, उदासी से, holding the paw in the palm of his hand, अपने हाथ की हथेली पर इस पंजे को पकड़े हुए, संभाले हुए कहता है, आह by an old fakir, so that this, जो ये मैजिक जादू इस पर किया गया है, it was done by an old fakir, एक बूढ़े फकीर ने ऐसा किया था। he was a very holy man, बड़ा ही एक पवित्र आदमी था। he would set all doubled up in one spot, going on for 15 years thinking of things। तो बड़ा ही एक धार्मिक आदमी था, और क्या किया क्या करता था, he would set, वो बैठ जाता था, doubled up means to bend, एक झुकी हुई स्थिति में, या फिर हम कहें सिंपली वो बैठ जाता था, ठीक है, अपने पैरों को मोड़ करके, जैसे हम बैठते हैं चौकड़ी लगा करके, तो उस तरीके से क्रॉस लेग्ड ही यूज्ड टू सिट, ऐसे बैठ जाता। एंड गोइंग ऑन फॉर 15 years, और 15 साल तक वो ऐसे ही बैठा रहा, थिंकिंग ऑफ थिंग्स, और वो क्या कर रहा था, थिंकिंग ऑफ थिंग्स, चीजों के बारे में सोच रहा था, या फिर हम कहें ध्यान कर रहा था। एंड he wanted to show that fate ruled people, और क्या मकसद क्या था उसका वहां बैठने का, और क्या सोच रहा था, तो उसका जो मकसद था वो था, वो चाहता था टू शो, दिखाना कि फेट रूल्ड पीपल, कि जो भाग्य है वो रूल करता है लोगों को, यानी कि जो मनुष्य हैं उनका जीवन पूरी तरीके से भाग्य के अनुसार चलता है, किस्मत के अनुसार चलता है। That everything was cut and dried from the beginning, cut and dried means कि सब कुछ पहले से ही तय है, सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। एज यू माइट से, जैसे कि हम कह सकते हैं पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड है कि ऐसा ऐसा होना है, और वही होता है। दैट देयर वाजंट नो गेटिंग अवे फ्रॉम इट, और इससे बचने का, जो डिसाइडेड है पहले ही, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, ये साबित करना चाहता था। एंड दैट इफ यू ट्राई टू, अगर आप इससे बचने की कोशिश करते हैं या इसे बदलने की कोशिश करते हैं, जो पहले से ही निर्धारित है, भाग्य जो है, यू कॉट इट हॉट, कॉट इट हॉट मीन्स सिंपली हम देखें तो कुछ गर्म चीज को पकड़ लेना, ठीक है, गर्म चीज को हम पकड़ेंगे तो क्या होगा, हाथ जल जाएंगे हमारे, है ना। सो that is, if anyone tries
to change his fortune, change his fate, अपना भाग्य बदलने की कोई इच्छा करता है, कोशिश करता है, तो फिर इसका उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ता है. He pauses solemnly. Solemnly is with seriousness. गंभीरता से रुक जाता है ये कहकर. And then he says, so he put a spell on this bit of a paw. तो इसलिए उसने ये साबित करने के लिए bit of a paw means इस छोटे से पंजे पर एक जादू कर दिया. It जादू मंत्र कर दिया. ठीक है, spell. It might have been anything else, but he took the first thing that came handy. और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसे बंदर के पंजे पर ही ये जादू करना था. नहीं, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसके हाथ जो चीज पहले आई उसने उसी को ले लिया. बंदर का पंजा पहले हाथ लगा तो इसी को उठा लिया और इसी पर ही ये जो जादू है, टोना है, कर दिया. एंड he put a spell on it and made it so that 3 people, and looking at them and with deep meaning, could each have 3 wishes. और इसलिए और उसने क्या किया, फकीर ने इस पर एक मंत्र फूंक दिया. एंड मेड इट सो दैट 3 people, और इसे ऐसा बना दिया कि 3 लोग, और जब वो कहता है 3 लोग, लुकिंग एट देम एंड विद डीप मीनिंग, तो वो इन तीनों की तरफ देख रहा है. 3 कौन है? मिस्टर वाइट, मिसेस वाइट एंड देयर सन हर्बर्ट. तो ये भी 3 लोग हैं यहाँ. तो इन तीनों की तरफ वो देखता है एक गहरे अर्थ के साथ कि इस बंदर के पंजे पर जो मंत्र है उसके कारण 3 लोग कुड ईच हैव 3 विशेस. 3 लोग अपनी 3 इच्छाएं पूरी से करवा सकते हैं. ऑल बट मिसेस वाइट लाफ रादर नर्वसली. सभी हंसते हैं, बट मिसेस वाइट लाफ रादर नर्वसली. लेकिन जो मिसेस वाइट है नर्वसली हंसती है, बस ऐसे ही हंसती है, उसे हंसी नहीं आती है, दबी दबी सी हंसती है. बिकॉज शी इज अफ्रेड, वो डर गई है ये सब सुन करके. एंड जो हर्बर्ट है और मिस्टर वाइट है, ये इसको मजाक में ले रहे हैं. ठीक है, वो हंसते हैं इसलिए. एंड मिसेस वाइट कहती है डोंट, चुप कराती है उन्हें, हंसो मत. एंड सार्जेंट मोर ग्रेवली, फिर और भी ज्यादा गंभीरता के साथ क्या कहता है, बट मार्क यू, though the wishes were granted, those 3 people would have cause to wish they hadn't been. तो कहता है मार्क यू, लेट मी टेल यू, ध्यान दो, though the wishes were granted, हालांकि इच्छाएं इससे पूरी हुई, लेकिन those 3 people would have cause to wish they hadn't been. वे 3 लोग जो थे, वे अगर तीनों इससे अपनी इच्छाएं मांगेंगे तो they would be causing something, कुछ ऐसा होगा, या फिर उनकी विश के कारण कुछ ऐसा होगा जो वो नहीं चाहते थे. ठीक है, जो चाहते हैं वो मांग लेते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होगा जो वो कभी नहीं चाहेंगे, इतना बुरा उनके साथ होगा. एंड मिस्टर वाइट ही सेज, बट हाउ कुड द विशेस बी ग्रांटेड. लेकिन ये जो इच्छाएं हैं कैसे पूरी की जा सकती हैं, कैसे पूरी हो सकती हैं. एंड सार्जेंट सेज, ही डिडंट से, जो फकीर है उसने ये नहीं बताया कि कैसे इच्छाएं पूरी होंगी. इट वुड ऑल हैपन सो नेचुरल, यू माइट थिंक इट अ कोइंसिडेंट इफ डिस्पोज्ड. तो कहता है इट वुड ऑल हैपन सो नेचुरल, जो इच्छाएं पूरी होंगी इस तरीके से होंगी दैट, कि ऐसा लगेगा कि बड़ा ही सब कुछ बड़े ही प्राकृतिक तरीके से हुआ है. यानी कि you might think it a coincidence if so disposed. अगर इच्छाएं पूरी हो गई तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो एक कोइंसिडेंस है. मीन्स क्या कहेंगे हम इसे, दैट ये किसी न किसी चीज के कारण से ऐसा हुआ है. ठीक है, जैसे कि हम इसमें देखते हैं जो
व्हाइट फैमिली है, मिस्टर व्हाइट वो कुछ पैसे मांगता है, ठीक है, उसकी विश है कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएं, लेकिन उसे जब पैसे मिलते हैं तो व्हाट इज द कोइंसिडेंस, क्या चीज है, जो हर्बर्ट है वो मर जाता है, ठीक है, हर्बर्ट डाइज और उसके कंपेंसेशन के पैसे वहां मिलते हैं, सो दैट इज द कोइंसिडेंस। एंड हर्बर्ट हियर सेज व्हाई हैवंट यू ट्राइड इट सर, सो ही इज आस्किंग क्या आपने इसका यूज नहीं किया है, अभी तक इच्छाएं पूरी नहीं की। सो सार्जेंट सेज, सार्जेंट ग्रेवली आफ्टर अ पॉज, कुछ देर के लिए रुकता है और फिर गंभीरता से कहता है आई हैव, हाँ मैंने इच्छा इससे मांगी है, ट्राई किया है मैंने इसे। एंड देन हर्बर्ट ईगरली मीन्स इम्पेशेंटली, क्विकली, बहुत जल्दी से पूछता है यू हैव हैड योर थ्री विशेस, क्या आप तीनों इच्छाएं अपनी पूरी करवा चुके हो। एंड सार्जेंट ग्रेवली गंभीरता से कहता है यस, हाँ। एंड मिसेस वाइट शी आस्क्स वर दे ग्रांटेड, क्या जो इच्छाएं तुमने मांगी क्या वे पूरी हुई, ग्रांटेड मीन्स क्या वे पूरी हुई, क्या तुम्हें मिला जो तुमने मांगा। एंड सार्जेंट स्टेयरिंग एट द फायर, सो नाउ ही इज सिटिंग नियर द फायरप्लेस एंड उस आग की तरफ वो स्टेयरिंग घूर रहा है और कहता है देवर, घूरते हुए कहता है देवर, हाँ इच्छाएं मेरी पूरी हुई। एंड आफ्टर दैट ही टेक्स अ पॉज, रुक जाता है कुछ पल के लिए। एंड देन मिस्टर वाइट आस्क हैज एनीबडी आल्सो विश्ड, क्या और किसी ने भी इच्छाएं मांगी हैं इससे। तो सार्जेंट कहता है यस, बताता है हाँ, द फर्स्ट ओनर हैड हिज थ्री विशेस, जो पहला ओनर था, पहला मालिक था इस पंजे का, या पहली बार जिसके हाथ ये पंजा लगा उसने अपनी तीनों इच्छाएं इससे पूरी करवाई। एंड देन लॉस्ट इन रिकलेक्शन, लॉस्ट इन रिकलेक्शन, रिकलेक्शन होता है जब आप पिछली बातों को या फिर पास्ट को हम याद करते हैं, तो अपने जो बीती बातें हैं, पुरानी बातें हैं, उनमें ये विचारों में सार्जेंट यहाँ खो जाता है ये कहकर। And then he says, yes, oh yes, he had his three wishes all right. हाँ तीनों इच्छाएं उसने उसकी पूरी हुई। I don't know what his first two were, very impressively. Again he is impressively he is saying this, प्रभावित होते हुए कि मुझे नहीं पता कि उसकी फर्स्ट टू, पहली दो इच्छाएं उसकी क्या थी मुझे नहीं पता, बट द थर्ड वाज फॉर डेथ, लेकिन जो उसकी तीसरी इच्छा थी वो क्या थी, वो उसने मौत मांगी थी तीसरी इच्छा में। और शडर, और जब ये कहता है तो सभी शडर, ट्रेम्बल, सभी कांपते हैं, कांप उठते हैं सभी। दैट्स हाउ आई गॉट द पॉ, और उसकी मौत के बाद ही ये पंजा मेरे पास आया। A pause. And after when he says this, तो एक खामोशी छा जाती है, पूरे माहौल में एक खामोशी आ गई है, कोई नहीं बोल पाता है। और देन हार्बर्ट चीयरफुली, तो थोड़ा लाइट करने के लिए माहौल को, चीयरफुली खुशी से कहता है, खुश होते हुए कहता है वेल seems to me you have only got to wish for things that can't have any bad luck about them, तो मुझे लगता है you have only got to wish for things, तुम वही चीजें मांगते हो that can't have any bad luck about them, कि जो कुछ बुराई ना लेकर के आए, ठीक है, जो साथ में कुछ बुराई लेकर आती हैं ऐसी ही चीजों के बारे में तुम मांगते हो। एंड ही राइजेस, और खड़ा हो जाता है हर्बर्ट। एंड सार्जेंट शेकिंग हिज हेड, अपना सिर हिलाते हुए कहता है आह। एंड मिस्टर वाइट टेंटेटिवली, टेंटेटिवली मीन्स एग्जामिनिंग, देख रहा होता है मॉरिस की तरफ, और उसे सिर हिलाते हुए और कहता है मॉरिस, if you have had your three wishes, it's no good to you. Now, what do you keep it for? So he is asking. So here we see that Mr. White is very much interested in having this paw. ठीक है, वो चाहता है कि ये पंजा मेरे पास आ जाए, इसलिए कहता है मॉरिस यू हैव हैड योर थ्री विशेस, तुमने अपनी तीनों इच्छाएं
इससे पूरी करवा ली हैं, इट इज नो गुड टू यू। और एक आदमी तो 3 ही इच्छाएं पूरी करवा सकता है, तो अब ये तुम्हारे किस काम का। नाउ व्हाट डू यू कीप इट फॉर, तो अब इसे क्यों लिए घूमते हो। तो क्या कहने का मतलब है कि मुझे दे दो इसे, है ना। तो सार्जेंट यहाँ कहता है, सार्जेंट स्टिल होल्डिंग द पॉ, अभी भी इस पंजे को अपने हाथ में लिए हुए, लुकिंग एट इट, इसकी तरफ देखता है और कहता है फैंसी आई सपोज। फैंसी इज मीन्स इमेजिनेशन, इट इज माई इमेजिनेशन आई थिंक। क्या इमेजिनेशन है। आई डिड हैव सम आइडिया ऑफ सेलिंग इट बट आई डोंट थिंक आई विल। ठीक है, ये उसकी इमेजिनेशन हम देखेंगे अभी, कि मैंने सोचा था, मेरे दिमाग में विचार आया था कि मैं इस पंजे को बेच देता हूँ, बट आई डोंट थिंक आई विल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बेचूंगा। इट्स डन मिस्चीफ इनफ ऑलरेडी, ये बहुत मिस्चीफियस डैमेज, इट हैज कॉज्ड इनफ डैमेज, पहले ही बहुत नुकसान ये पंजा पहुंचा चुका है। बिसाइड्स पीपल वोंट बाय, और इसके अलावा लोग इसे नहीं खरीदेंगे। सम ऑफ देम थिंक इट इज अ फेयरी टेल, कुछ लोग तो इस पंजे की जो पावर है या जो मैजिक है, उसको सिर्फ एक फेयरी टेल मानते हैं, एक कहानी मानते हैं, इसका विश्वास नहीं करते हैं। एंड सम वांट टू ट्राई इट फर्स्ट एंड पे आफ्टर, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि पहले हम ट्राई करेंगे, देखेंगे कि इच्छाएं ये सही में पूरी करता है या नहीं, और अगर पूरी करता होगा तब हम तुम्हें इसके पैसे दे देंगे। So that is his fancy is that he does not want. Okay, ठीक है, इसी को कंप्लीट करते हैं। यहाँ क्या कहा इसने कि फैंसी इज, ये मॉरिस नहीं चाहता कि इस पंजे से किसी और का भी नुकसान हो। ठीक है, नहीं चाहता कि किसी और को नुकसान पहुंचे, इसलिए ये इसे अपने पास रखना ठीक समझता है। और फिर कहता है कि काफी लोग तो इसमें विश्वास भी नहीं करते हैं, और कुछ कहते हैं कि पहले हम ट्राई करेंगे। देयर इज अ नर्वस लाफ फ्रॉम द अदर्स, और सार्जेंट के अलावा सभी जब ये बात कहता है तो सभी हंसते हैं। नर्वस लाफ मीन्स एक घबराहट भरी हंसी, ऐसी हंसी वो हंस देते हैं।